आरबीआई ने शुक्रवार 19 मई को एक सर्कुलर जारी कर 2000 रुपये के नोट्स को चलन से वापस लेने की घोषणा की। अब आपके माइंड में कई सवाल होंगे, जैसे नोट एक्सचेंज करने का तरीका क्या है, नोट कहां और कैसे बदले जा सकते हैं, प्रोसेस क्या होगा और क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। 23 मई यानी आज से बैंक्स में 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज और डिपॉजिट करने का काम शुरू हो गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैलिड रहेंगे। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक्स को 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए अलग काउंटर बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि ग्राहकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। For a long time, the Reserve Bank has been following what is called a clean note policy. Therefore, from time to time, Reserve Bank withdraws currency notes of particular series and issues fresh notes. And also, as a part of the normal banking operations also through the banks, as you know that when the notes get soiled, it is returned and fresh notes are issued. A somewhat similar exercise was undertaken in 2013-14. Whereby the notes which were printed prior to 2005, they were withdrawn from public circulation, and the public was advised that you can come and exchange the notes. So this time we are therefore withdrawing it from circulation, these 2000 rupee notes, but they continue as legal tender. We have clearly explained in our press note that these 2000 notes were primarily issued for the purpose of quickly replenishing the value of money which was being taken out from the system when the the then prevailing 1000 rupee notes and 500 rupee notes were what is called when their legal tender status were withdrawn. So that time the 2000 rupee notes were introduced with a specific purpose, with a primary purpose, let me say with a primary purpose to put back that much value into the system. And a decision was taken to adopt 2000 rupee notes, because if you do currencies of lower denominations, in the same amount of time required for printing, with the same paper, with the same capacity of printing, you could have only printed lower value of currency. So 2000 means higher value of currency was printed and supplied. So it was introduced with the primary purpose of replenishing the currency which had been declared, currency in the context of the 2016 November measure which was undertaken by the government at that time. That purpose has been fulfilled. Today there are enough notes in circulation of other denominations. 4 महीने की समय दी गई है। आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सूटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए, कल ही जाए, आज कल से शुरू हो रहा है। ये नहीं कि आप तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें। आराम से करिए, टेक योर टाइम। 4 महीने हैं। By September 30th, please exchange it. And time is given up to September 30th so that it is taken seriously. Because otherwise, if you leave it open-ended, then it becomes a kind of a endless process. आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक खाते में पैसे डिपॉजिट करने की कोई लिमिट तय नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बैंक खाते में बड़ी रकम जमा करते हैं, तो आपसे पैसे के बारे में पूछताछ की जा सकती है। 2000 रुपये का नोट भारत में पहली बार नवंबर 2016 में पेश किया गया था, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि वो 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट्स को डिमोनेटाइज कर देगी। संडे को ऐसे रूमर्स फैलाए जा रहे थे कि लोगों को 2000 रुपये का नोट एक्सचेंज करने के लिए फॉर्म भरना होगा, और यह भी कहा गया कि 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई आइडेंटिटी कार्ड भी जरूरी होगा। ये सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी होने लगा। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने एक बड़ा अपडेट देते हुए कहा है कि 20,000 रुपये तक के अमाउंट के लिए रिक्विजिशन स्लिप की जरूरत नहीं होगी। यानी 2000 रुपये के 10 नोट एक बार में बिना रिक्विजिशन स्लिप भरे बदल सकते हैं। वहीं एसबीआई ने एक सर्कुलर में साफ कर दिया है कि इसके लिए कोई पहचान पत्र नहीं देना होगा। एसबीआई की ओर से जारी निर्देश में ब्रांच मैनेजर्स से कहा गया है कि नोट एक्सचेंज करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए इन निर्देशों का पालन किया जाए। इसके साथ ही नोट एक्सचेंज करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, यह निःशुल्क है। अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है, तो आप इसकी शिकायत बैंक अधिकारी से कर सकते हैं।
अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप किसी भी बैंक की ब्रांच से नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। आप सीधे काउंटर से नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ने ये नहीं बताया है कि अगर लोग 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट जमा नहीं करा पाए तो ऐसे में क्या होगा। रिपोर्ट के अनुसार अगर टाइम लिमिट के बाद भी लोगों के पास 2000 रुपए के नोट मिलते हैं तो कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। 2000 रुपए के नोट बंद करने के इस फैसले के पीछे की वजहों की बात करें तो आरबीआई सोर्सेस का कहना है कि 2000 के नोट को नकली नोटों के बढ़ते चलन के चलते वापस लिया गया है। ऑपरेशन क्लीन नोट पॉलिसी ब्लैक मनी के बाजार को टारगेट करने के लिए है। आरबीआई ने लोगों से 2000 रुपए के नोट को 30 सितंबर 2023 तक एक्सचेंज या बैंक में डिपॉजिट करने की अपील की है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।